Bismillahirrahmanirrahim. Dear participants, this is Mohammad Bilal Ashraf from Office of Corporate Linkages and Placements at UMT Quaid-e-Azam Campus, Lahore. Today, Office of Corporate Linkages and Placements at UMT Quaid-e-Azam Campus, Lahore has organized a webinar for you on the topic of self-branding skills. In this connection, we have invited Mr. Sajid Hafiz Malik, who is a trainer and educationist. Dear sir, we warmly welcome you at GMT Quaid-e-Azam Campus, Lahore. Dear students, there are certain guidelines which you have to follow during the session. During the session, अगर आपका कोई question हो तो आपने उस question को अपनी notebook पे write down कर लेना है और फिर और उसके बाद अपना hand raise कर देना है. In the end of the session, हम आपका जो जिन्होंने hand raise किया होगा उनका mic unmute करेंगे, आपके रिसोर्स पर्सन सर गुलफराज नकवी साहब, और फिर उसके बाद आपको जो है कि आप अपना क्वेश्चन कर सकेंगे और अकॉर्डिंगली गेस्ट स्पीकर जो हैं सर साजिद हफीज़ मलिक साहब आपको आपका आंसर देंगे. तो बेटे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आप सेकंड लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आपने कल मार्केट में जाना है और कॉर्पोरेट सेक्टर में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है. सो दैट्स वाई इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ ब्रांड. तो ब्रांडिंग के ऊपर ये आपको सर जो है आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे. तो डियर सर, नाउ आई वुड लाइक टू request you to please interact with the participants. Thank you, sir. Thank you very much, Mr. Bilal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. Dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullah. My name is Sajid and my full name is Sajid Hafiz Malik. And as Mr. Bilal introduced myself, I am a corporate trainer, educationist, and I have been working with the multiple organizations, including the government bodies and the private sector, and especially at the education sector. So today our topic is self-branding skills. Before going to start this topic, first of all, I would love to engage you people relevant to the topic, how important and crucial this topic is for you as you are quite ready to going for the market for your self-grooming and self-branding as well. So my dear, when we talk about the branding, basically self-branding, and more specifically self-branding skills, the first impression that comes into our mind is about what? It's basically what? You just visualize in your brain what the idea that you perceive right now as far as the self-branding skill is concerned. My dear, basically it's a unique combo of your strengths, your passion, and your purpose towards your life and your workplace. When we talk about strengths, strength is what basically? There are two levels of strength basically. We segregate these strengths in two parts. The first is hard skill and second is soft skills. Whatever the degree that a person should acquire and whatever the CGPA, for example, if someone claimed that he has done PhD, even MPhil, and if he still unable to speak a single word, if he unable to manage the stress and other things, it means he's lacking the soft skills. And the grade basically ये जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है और जो आप ग्रेडिंग कर रहे होते हैं, आप जो अपने स्टडीज को बैचलर है, आपका बीएस है, आपका एमफिल है, आपका पीएचडी है, व्हाट्सओवर द केसेस, ये आपकी हार्ड स्किल्स हैं. हम जब
सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो बेसिकली जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, अगर चाहे उसमें हार्ड स्किल्स भी शामिल है, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स का उसका मेजर पार्ट होता है। आप यकीन जानिए, जब आपको मार्केट में जाना है तो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मे आस्क यू, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द मार्केट। आपको अंदाजा होना चाहिए जब आप इंट्रोडक्शन करवाना है तो इट्स नॉट लाइक दैट कि माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम हियर एंड आई हैव डन दिस। इट्स मोर अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, कि whatever the strength that you have, you rightly over there, you have to explore and expose your strengths. And if you are unable to expose and explore, तो आपके लिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्योंकि बहुत स्टिफ कंपटीशन है मार्केट के अंदर। तो लिहाजा अपने स्ट्रेंथ्स को बढ़ाइए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। और जब हम स्किल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो स्किल्स में हम स्टार्ट करते हैं आपकी कॉन्फिडेंस से, आपकी कम्युनिकेशन से, हाउ गुड यू आर एज फार एज द स्ट्रेस मैनेजमेंट इज कंसर्न। आप कॉन्फ्लिक्ट को निगोशिएट कैसे करते हैं, वर्क प्लेस एथिक्स के बारे में आप कितना जानते हैं, आपको कैसे अंदाजा होगा जो आपके जेडीज या एसओपीज हैं आपने उसको कैसे मैनेज करना है, ये कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, दिस इज ऑल अबाउट ना। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि सेल्फ ब्रांडिंग जब हम बात करते हैं, इट्स अ कम्बो ऑफ व्हाट, नंबर 1 is your strengths, number 2 is your passion. It basically, passion is a driving force that leads you towards the success. ये passion ही है। और passion, you may add a new word with the passion, the patience. Passion along patience. These are two things together. We couple these two things together. ये दोनों आपको आगे लेके जा रही होती हैं। तो आपकी strengths आपको डिफाइन करती हैं, आपका रास्ता, आपका पैशन क्या है, और आपका पर्पस ऑफ योरसेल्फ एंड एज फार एज पर्पस फॉर द वर्क प्लेस जहां आप काम करने जा रहे हैं। तो सेल्फ ब्रांडिंग स्किल की जब भी आप बात करेंगे तो आपकी 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, तीनों इंटीग्रेटेड आपस में। और व्हेन यू लुक अराउंड द वर्ल्ड, हियर एंड देयर, योर लेफ्ट एंड राइट, all the successful and all the successful and the important person, the important figure, the personalities, the celebrities, one of that you have seen, the one common and unique thing among them is what? Their identity. आइडेंटिटी जो होती है स्टूडेंट को बड़ी मैटर करती है, याद रखिएगा। अगर आप, ये आइडेंटिटी ही आपकी ब्रांडिंग है। देखें आप किस तरह अपने बारे में लोगों को बताते हैं, ये आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, ये ही आपकी ब्रांडिंग है। और इसी को आपने कैश कराना होता है मार्केट के अंदर। तो देखिए, अगर आप अपनी आइडेंटिटी जाएंगे, लिहाजा बिफोर गोइंग टू डिटेल मैं ये चाहूंगा कि हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो जाना चाहिए कि सेल्फ ब्रांडिंग स्किल्स जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये इनफैक्ट है क्या। इसमें ये सारी चीजें आपने याद रखनी है जो मैं आपसे अभी डिस्कस करता आ रहा हूं। आपकी स्ट्रेंथ से स्टार्ट किया मैंने, और फिर मैं स्ट्रेंथ्स के बाद आपके पैशन पे आया, फिर मैं पैशन के बाद आपके पर्पस पे आया, और फिर मैंने आपकी आइडेंटिटी को डिस्कस किया। ये आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, जो आपकी जाती आइडेंटिटी है, ये बेसिकली आपकी ब्रांडिंग है। और देखिए, बिफोर गोइंग इनटू डिटेल मैं आपको एक चीज और डिस्कस करता चलूं कि जो पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, हमारे इस पूरे सेशन में जो चीजें कवर होंगी साथ साथ, उसमें सेशन हाइलाइट्स हैं, स्पेस फॉर ब्रांडिंग, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, सेल्फ ब्रांडिंग एंड ब्रांडिंग टूल्स डिस्कस करेंगे, रैपिड लर्निंग मोड को डिस्कस करेंगे, ग्लिम्पसेस ऑफ द एक्सीलेंस, कंफर्ट जोन वर्सेस अपॉर्चुनिटी जोन, मैपिंग टूल्स क्या होते हैं, नेटवर्किंग विद वैल्यू एडेड क्या होता है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, टाइम वैल्यूएशन क्या होती है, परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट कैसे होती है, और पोटेंशियल वर्क मैनेजमेंट क्या होती है। ये कुछ सेशन हाइलाइट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए, हम दोबारा टिपिकली सेल्फ ब्रांडिंग में आपको एक अच्छा एक क्लियर पिक्चर सामने आपकी आ जाएगी कि सेल्फ इंटेंशनल एफर्ट, दिस इज बेसिकली व्हाट इट्स योर इंटेंशन इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर दैट। ठीक है, अगर आप इसके लिए विलिंग है, आपकी इंटेंशन है, इफ यू हैव सम काइंड ऑफ इंटेंशन योरसेल्फ to move forward, to get different things as far as success is concerned, as far as satisfaction is concerned, as far as the different domains are concerned, तो आपकी सेल्फ इंटेंशन बहुत जरूरी है आपकी ब्रांडिंग के लिए, याद रखिएगा। पहले अपने आप को तो मना लीजिए, पहले अपने आप को तो खोज लगा लीजिए, एक्सप्लोर कर लीजिए, एक्सपोज कर लीजिए, अपनी ख्वाहिश को तो सामने ले आइए, आपकी अपनी इंटेंशन तो सामने आनी चाहिए, आपका पैशन नजर आना चाहिए। तो बेसिकली इट्स स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ इंटेंशन एफर्ट्स।
और देखिए ये सारा एक दायरा है, इट्स लाइक अ सर्कल, कि इसके आप अगर थोड़ा सा दाएं तरफ देखें तो इन्फ्लुएंस पब्लिक परसेप्शन। आमतौर पे इसके दो मायने हो सकते हैं। आमतौर पे हम पब्लिक परसेप्शन पे बहुत फोकस करते हैं और अमूमन ये नेगेटिविटी में ले जाती हैं हमें। बस औकात हमें देखने में पड़ता है या हम सुनते हैं कि जी आपकी फलां चीज अच्छी नहीं है, आप फलां चीज अच्छी नहीं है। अब इसके दो पहलू हैं, आप उस चीज को या तो बेहतर कर लें या आप स्ट्रेस या एंग्जाइटी का शिकार हो जाएं और डिप्रेस हो जाएं। ये डिपेंड करता है कि हाउ बेसिकली यू टुक द थिंग्स ना, आपकी जो परसेप्शन है वो क्या है, आपने चीजों को किस अंदाज में परसीव किया है। तो नॉर्मली देखने में यह आया कि हम हमारी जो इन्फ्लुएंस होता है पब्लिक परसेप्शन के बारे में वो नेगेटिव जाता है, हम जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। डोंट नीड टू गो फॉर दैट। फोकस करें अपने आप को, विजन क्लियर रखें और आपको अंदाजा होगा अपने क्या करना है। और नंबर थर्ड पे सेल्फ पोजिशनिंग, यानी कि आपने खुद गेस करना है कि आपकी अपनी पोजीशन क्या है। आप अगर आप फर्ज कीजिए, अगर आप विजुलाइज करें कि आइंदा 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद मैं कहां स्टैंड करता हूं, मेरी पोजीशन मार्केट में क्या होएगी, मेरी इंडिविजुअलिटी की स्किल्स क्या होंगी, मुझे कौन कौन सी मजीद चीजें अडॉप्ट करनी है, मेरी डाइजेशन क्या है। तो सेल्फ पोजीशनिंग को भी हम रिलेट कर सकते हैं सेल्फ ब्रांडिंग के साथ। और इंप्रूव्स क्रेडिबिलिटी, बड़ी कॉमन सी बात है। क्रेडिबिलिटी आपकी जो ट्रस्टवर्थीनेस है, आपका जो ट्रस्ट है, जितना आप इंप्रूव होती जाएगी वक्त के साथ साथ उतना ही। देखिए फर्ज कीजिए हमारे यहां होता क्या है, हम जब जॉब करते हैं तो जॉब में हमारी क्रेडिबिलिटी स्टेक में लगी होती है। क्रेडिबिलिटी में आपका कैरेक्टर स्टार्ट होता है और कैरेक्टर में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आपकी ऑनेस्टी नहीं आती कैरेक्टर में आती, आपकी सिंसियरिटी नहीं आती, आपकी लॉयल्टी नहीं आती, आपकी नेक नीयत नहीं आती। दीज आर ऑल फैक्टर्स, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपकी क्रेडिबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। तो क्रेडिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सेल्फ मार्केटिंग, देखिए जब तक आप खुद मार्केट नहीं करते ना अपने आप को, यू हैव टू डिफाइन योर सेल्फ, यू हैव टू वेरी कीन एंड वेरी गुड ऑब्जर्वर ऑफ योर सेल्फ। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने चैनलाइज कैसे करना है आपने आपको मार्केट करने के लिए, और हाउ गुड यू मार्केट योर सेल्फ, ऑफ कोर्स आपके रिजल्ट भी उतने आपके पास अच्छे आते हैं। तो सेल्फ मार्केटिंग, और मैं इसकी बहुत से एविडेंसेस आपको दे सकता हूं सेल्फ मार्केटिंग की। देखिए जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था टीचिंग एंड ट्रेनिंग के अंदर, तो मेरे पास भी बहुत सारे बैरियर्स थे और मुझे गैस होना शुरू हो गया कि मैंने कैसे अपने को मार्केट करना है और किससे मैंने बेहतर करना है। थोड़ा व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आप थोड़ी सी कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला की जात आपके लिए रास्ते बनाती है। तो सेल्फ मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिंग इन इंडस्ट्री, फिर वही बात सेल्फ पोजीशन से मैं रिलेट कर रहा हूं कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री में स्पेस क्या है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप किस इंडस्ट्री के लिए फिट हैं, कहां आप एडजस्ट होंगे और किस अंदाज में होंगे, उसके लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है क्या वो हमारे पास मौजूद है। सबसे जरूरी बात, फिर वही हम रिपीट करेंगे, ये सारी बातें उस वक्त अच्छी लगती हैं जब हमारे पास मतलूबा स्किल्स मौजूद होती हैं। तो देखिए सेल्फ ब्रांडिंग भी स्किल्स पे बेस करती है। जितनी स्किल्स में आप अच्छे होंगे उतने आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। हम इसको मूव करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब आप सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, सेल्फ ब्रांडिंग की सिग्निफिकेंस की याद रखिएगा, तो सिग्निफिकेंस के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर एक है आपका करेक्टर और आपकी पॉपुलैरिटी। याद रखिएगा दुनिया आपको जो देखती है ना, आपका आउटर फ्रेम से आपको देखती है। आपका आउटर फ्रेम क्या है, हाउ मच सक्सेसफुल यू आर, आपका जो सक्सेस का रेशियो है वो ये डिफाइन कर रहा होता है कि आपकी आउटर पर्सनैलिटी में क्या चीजें हैं। लोग आपको वहां से पहचान रहे होते हैं, भाई वो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है ना, वो एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छे हैं, वो जॉब प्रोफेशनल बहुत अच्छे हैं। आपकी आउटर लुक बेसिकली रिफ्लेक्ट कर रही होती है आपकी सक्सेस के ऊपर बेस करते हुए कि आप कितने कामयाब और कितने कामयाब नहीं हैं। एक चीज है जिसको हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन। याद रखिएगा सेटिस्फैक्शन और आपके सक्सेस ये दोनों डिफरेंट ऑपोजिट डोमेन में जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपका सक्सेस मेजर कर रहे हैं वो लोग जो आपको आउटर देख रहे हैं, जो गेस कर रहे हैं, जिन्होंने क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है। जो सेटिस्फैक्शन का एलिमेंट है ये आपका इनर बताता है आपको, ये आपके अंदर बताता है आपको। और जब आप इनर की बात करते हैं तो इनर की सेटिस्फैक्शन कब आती है, जब कैरेक्टर मजबूत होता है। हम क्यों बार बार कैरेक्टर की बात करते हैं,
आपके पास हार्ड स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, आपके पास सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, आपने बड़ी मेहनत भी अपने ऊपर की है, लेकिन अगर आपने कैरेक्टर को बिल्ड नहीं किया ना तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और कैरेक्टर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कैरेक्टर क्या है? आपका इनर है ना, आपके अंदर की चीजें हैं ना। आप किसी को एक मरतबा बेवकूफ बनाएंगे, 2 मरतबा बेवकूफ बना सकते हैं, 3 मरतबा कब तक बेवकूफ बनाएंगे? और वैसे भी हदीस नबी है कि मोमिन को 102 बार डसा नहीं जा सकता। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर आप जॉब किसी रेफरेंस की बेस पे ले भी लेते हैं और अगर आप इंप्रूव नहीं करते तो नुकसान उठा जाएंगे। आप प्रैक्टिकली अगर वहां अपने आप को मजबूत नहीं कर पाते, करेक्टर से मुराद देखिए, करेक्टर भी 2 पहलू हैं, 2 मायने बन सकते हैं। आमतौर पर करेक्टर से मुराद जो आमतौर पे हम लेते हैं, जो हमारे जहन में चल रहा होता है कि जी इसका अखलाक और बाकी मामलात, इसको थोड़ा, इस डोमेन को थोड़ा बढ़ा लीजिए। मैं पहले भी डिस्कस किया, ऑनेस्टी आपकी करेक्टर में डिपेंड करती है, आपकी सिंसियरिटी इसमें आती है, आपकी लॉयल्टी आती है, आपकी नेकनियती आती है, आपकी सिंपैथी आती है, आपकी एनर्जीज आती हैं, यस, आपका एंथुसियाज्म आता है। ये सारी चीजें करेक्टर की बेस बन रही होती हैं, ठीक है ना। आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितनी नेक नीति से काम करते हैं, ये कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। तो जब भी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं सेल्फ ब्रांडिंग की, तो बेसिकली ये क्या होता है, ये एक कंपटीशन चल रहा होता है किसके दरमियान? ये आपका सक्सेस और पॉपुलैरिटी जो आपके आउटर फ्रेम में लायक आ रही होती है, और आपके इनर क्या होता है, आपकी सेटिस्फैक्शन। याद रखिएगा, सेटिस्फैक्शन सक्सेस से नहीं आती, मैं पहले डिफाइन कर चुका हूं। सक्सेस की डोमेन कुछ और है, ये सेटिस्फैक्शन जिसे जमीर की अदालत आप कहते हैं, ये आपके अंदर से आता है, ये आपके कैरेक्टर से बिल्ड होता है। तो कैरेक्टर को बिल्ड करना इंतहाई जरूरी है, ठीक है ना। हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये थ्योरी है टीसीआई, टेम्परामेंट इन्वेंटरी कैरेक्टर। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, मैं आपको पहले बताऊं कि टीसीआई से पहले एक बात बड़ी जरूरी है। When you're going to accelerate towards the self-branding skill, the first thing is believe in yourself. इसको चाहे आप लिख लीजिए, believe in yourself. आप में से जो अफराद जितना अच्छे तरीके से अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उनको यकीन होता है कि यस यू आर द पर्सन टू डू दैट, यू आर द राइट पर्सन फॉर दैट। तो याद रखिएगा कि आपका जो जात पे यकीन है वो आपको बड़ा मजबूत करता है। और व्हेन यू बिलीव इन योरसेल्फ तो क्या होता है, आपका विजन क्लियर हो जाता है, आपका फोकस क्लियर हो जाता है। बड़ी कॉमन सी बात है। When you are in the position to believe in yourself, you have no time for hate, you have no time for regret, you have no time for worry, no time for barrier. आप फोकस्ड अप्रोच के साथ चल रहे होते हैं, आप इंतहाई फोकस्ड अप्रोच के साथ कामयाबी की तरफ चल रहे होते हैं। तो आपका जो पहला स्टेप है वो बिलीव इन योरसेल्फ है। और ये बिलीव इन योरसेल्फ कैसे आता है, ठीक है ना, जो आप स्किल्स को इंप्रूव करते जाते हैं तो आपकी जात मजबूत होती जाती है। यस, और याद रखिएगा ये जो बिलीव इन योरसेल्फ है ये बेसिकली पहली सीढ़ी है कामयाबी की तरफ, ये पहली कामयाबी की तरफ आपकी सीढ़ी है। देखिए ये टीसीआई जो हम बात करते हैं, टेम्परामेंट इन्वेंटरी कैरेक्टर, बेसिकली ये एक थ्योरी है और वाशिंगटन डीसी में यूनिवर्सिटी के अंदर ये पढ़ाई जा रही है, वहां अभी भी पढ़ाई जा रही है। इसमें 2 चीजें आती हैं, एक तो ये जो जीन्स आपके डीएनए के जरिए ट्रांसफर होते हैं, इसके समथिंग आपको याद है कि जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो समवन आस्क्ड मी कि सर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में इट्स लाइक अ जीन कि ये आगे ट्रांसफर होती है, इट्स जेनेटिकली ट्रांसफर्ड थिंग। जो कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो टीसीआई भी ऐसी है, कुछ चीजें तो आप लेते हैं अपने बड़ों से, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आपके बड़ों के अंदर थी तो आपके अंदर भी आ गई है। घर में आपके अब्बू या अम्मी या भाई बहनों के अंदर या चचा ताया के अंदर कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा है तो वो भी जीन में ट्रांसफर होकर आता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, अगर तो ये फैक्टर है लेकिन इसके साथ साथ स्पेस ओपन है। आप दूसरे एंड में कितनी मेहनत करते हैं अपने ऊपर। मैंने बताया कि कैरेक्टर, टेम्परामेंट, इन्वेंटरी ये 2 चीजों पे मबनी है। एक तो जीन से ट्रांसफर होती है कुछ चीजें, ठीक है ना, आपके बड़ों से आपकी तरफ, और दूसरा आप खुद एक्सपोज करते हैं, खुद मेहनत करते हो, आगे मूव करते हैं। लिहाजा ये दोनों चीजें हैं। अगर तो आपको एक चीज मिल गई और आपने आगे मेहनत भी की तो आप बड़े कामयाब हैं, और इसके बरक्स एक चीज आपको मिली और आगे आप मेहनत ना कर सके तो अपना काम है। हाँ,
एक चीज आपको नहीं मिली और आपने फिर भी मेहनत की तो फिर भी कामयाब है। तो इसको समझने की जरूरत है। ये बड़ा एक मजे वाला टॉपिक है टीसीआई, इसको हम तफसील से अलग डिस्कस करें तो बहुत इसका फायदा है। हम थोड़ा के मूव करते हैं सेल्फ ब्रांडिंग एंड ब्रांडिंग टूल्स। देखिए जो चीजें इसमें आती हैं ब्रांडिंग टूल्स के अंदर, हाउ यू अनलॉक योर पोटेंशियल। हमें से कितने लोग ऐसे हैं, हमें से कितने अफराद ऐसे हैं कि जिनको अपने पोटेंशियल का अंदाजा ही नहीं है। हम 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करेंगे, अजान हो रही है तो जैसे अजान खत्म होती है हम फिर स्टार्ट करते हैं। नहीं हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी ओके ओके ओके। لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة इन्नक ला तुखलिफुल मियाद। हम जब बात करते हैं सेल्फ ब्रांडिंग एंड ब्रांडिंग टूल्स की तो याद रखिएगा द फर्स्ट थिंग इज अनलॉक योर पोटेंशियल। अच्छा याद रखिएगा एक है आपका पोटेंशियल। बहुत से लोग से बात करते हैं, मेंटोर आपको बताते भी, आपके टीचर्स आपको बताते भी कि आपके अंदर ये पोटेंशियल है, आपके पास आप लविंग एंड केयरिंग एंड जेंटल एंड सिंपैथेटिक एनर्जेटिक एंड डेडिकेटेड एंड सिंसियर एंड लॉयल है, आपके अंदर नेक नियति है, आप इंथुजियास्टिक है, एनर्जेटिक है, हार्ड वर्किंग है, स्मार्ट वर्किंग है, आप जीनियस हैं, ये क्वालिटी है। ठीक है ना, ये आपकी स्ट्रेंथ बताई जाती हैं कि ये स्ट्रेंथ्स आपके अंदर है। तो देखिए एक है पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स, इस पे डिस्कस हम बहुत कम करते हैं। वो क्या है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो यू कैन गो फॉर दैट। आप उसके लिए भी आप ये भी अनलॉक कर सकते हैं, ये भी अनलॉक कर सकते हैं, ये भी कोशिश कर सकते हैं, ये भी कोशिश कर सकते हैं, इससे भी जा सकते हैं। तो अनलॉक योर पोटेंशियल। देखिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज्यादा इस हजरत इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत बहुत कुछ रखा है, बहुत कामयाबियां हैं। हमारा दिमाग, हमारा सोचने समझने की सलाहियतें, यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल की जात ने अशरफुल मखलूकात कहा ना हजरत इंसान को। तो अपने पोटेंशियल को मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं और हम हर ट्रेनिंग में ये कह रहे होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स पे कह रहे होते हैं, खुदारा एक्सप्लोर कीजिए, हाँ एक्सपोज कीजिए। अभी कल भी मैं प्रोग्राम में था तो वहां भी मैं ये डिस्कस कर रहा था कि एक चैनल के अंदर एक्सप्लोर। तो मुझसे पूछा मेरे होस्ट ने, एंकर पर्सन ने पूछा कि जी आप ये भी बताइए कि हम कैसे इसको एक्सप्लोर करें। तो आप स्ट्रेंथ इंप्रूव कीजिए, आप लिस्टिंग कीजिए कि ये मेरा स्ट्रेंथ एरिया है, ये मेरा वीकेंड एरिया है, इस स्ट्रेंथ एरिया को मैंने इंप्रूव करना है। फर्ज कीजिए कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पा रहे तो उसको बिल्ड कीजिए, कम्युनिकेशन के अंदर फ्लॉज है तो उसको बेहतर कीजिए, आपके अंदर स्ट्रेस में हैंडल करने की एबिलिटी नहीं है तो उसको मैनेज कीजिए। देखिए जब तक आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक नहीं करेंगे तो
आप आइडेंटिफिकेशन पे नहीं जाएंगे, ब्रांडिंग पे नहीं जाएंगे। बड़ा जरूरी है कि आप अपने पोटेंशियल को अनलॉक करें। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, पॉजिटिव। याद रखिए, कामयाब अफराद वो हैं जो जो पॉजिटिव सोचते हैं, जिनका विजन क्लियर होता है, जो नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। मैं आपको यकीन से बताऊं, अगर किसी सलाहियत के एतबार से थोड़ी सी कमी रह भी जाए, और लेकिन अगर हो आप पॉजिटिव, तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालता है और कामयाबी भी अता फरमाता है। देखिए, हमें से कोई ये दावा कर सकता है? नो, नो वन, कि हम बहुत, हमारे अंदर परफेक्शन पाई जाती है, हम कहीं ना कहीं फ्लॉज हमारे अंदर पाए जाते हैं। हम कोशिश करते हैं इसको इंप्रूव करने की, हम कोशिश करते हैं इनको बेहतर करने की, लेकिन अप्रोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, आपकी पॉजिटिव अप्रोच एक ड्राइविंग फोर्स होती है, ये लीड होती है टुवर्ड्स सक्सेस और सेटिस्फैक्शन। तो पॉजिटिव अप्रोच नेक नियति भी मबनी होती है, तो इस पे हमने वर्किंग करनी है। सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन, मैं ये तफसील से बता चुका हूं कि सक्सेस क्या और सेटिस्फैक्शन क्या है। सक्सेस का ताल्लुक कहां से है और सेटिस्फैक्शन का ताल्लुक कहां से है। सक्सेस कौन पहचानता है आपका, और सेटिस्फैक्शन का फैसला कौन करता है, हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। शिफ्टिंग फोकस इनसाइड और फाइंडिंग इनर, इस पे भी हम बात कर चुके हैं कि जब आप सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं तो आप अपने अंदर झांकते हैं। यस, इसको थोड़ी बात को ऐड कर लीजिए। Whatever you have in your heart, just to look into it, whatever, just pull it out, just pull it out. आप चीजों को निकालिए, अपने स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। अच्छा, सेल्फ ब्रांडिंग के लिए सबसे जरूरी चीज एक और भी है, मेडिटेशन और योगा। देखिए, हम इसकी तफसील से बात आगे भी करेंगे इंशाल्लाह, योगा और एक्सरसाइज और मेडिटेशन की। अपने भी वक्त निकालिए। अल्लाह ताला ने आपको जो जिस्म अता किया है, देखिए 24 घंटों में अगर हम 1 घंटे इस जिस्म को भी दें, अगर हमारा जिस्म तवाना होगा, हम फिजिकली फिट होंगे, बेहतर होंगे, तो याद रखिए हम अच्छे कामयाब इंसान बनेंगे। अगर हम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाएंगे, तो फिर इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। लिहाजा ये वो सारे यार्डस्टिक्स हैं जो आपके सामने डिस्कस किए गए हैं, कि वो चीजें हैं जो टूल्स के तौर पे हम अप्लाई कर सकते हैं। हम थोड़ा मूव करते हैं। An original is always worthy than a copy. We should rather die as individual than live without an identity. Identity is much compulsory thing, mandatory है। आपकी जाती आइडेंटिटी, देखिए, ये आइडेंटिटी ही आपको कॉन्फिडेंस देती है, आइडेंटिटी ही आपको मूव करती है आगे की तरफ। तो अगर आप अपनी आइडेंटिटी पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, सारी जिंदगी हमारे अंदर ये ख्वाहिश रहती है कि हम अपना नाम पैदा करें। तो ये आइडेंटिटी वही तो है, मुकाम पैदा करना, नाम पैदा करना, लेकिन उसके कुछ वेज हैं, कुछ मेथड्स हैं, कुछ उसके टूल्स हैं जो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसको हम इस वक्त डिस्कस भी कर रहे हैं। तो लिहाजा आपको बड़ा फर्म होना है अपनी आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे हमने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। हमने स्टार्ट में जब बात की, हमने कहा बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहला टूल हमने याद किया, डिस्कस किया था, बिलीव इन योर सेल्फ। दूसरी बात, डिस्कवर योर सेल्फ। हम में से कितने अफराद हैं जो अपने को डिस्कवर करते हैं? कितने अफराद हैं? ठीक है ना, हमें पता है कि हमने कभी अपने को डिस्कवर किया है। आपको पता है ये कितना जरूरी चीज है, डिस्कवर करना अपने आप को। आप वो सारे वेज अडॉप्ट करें जिसमें से आपकी लर्निंग इनहैंस हो। बुक रीडिंग भी हो सकती है, बुक रीडिंग के अलावा आर्टिकल रीडिंग है। आप एंगेज करें अपने आप को डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर, जहां से आप डिफरेंट प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन, डिफरेंट मेंटोर्स, ठीक है ना। देखिए, हमारे यहाँ इतना ट्रेंड नहीं पाया जाता। अगर आप कंपैरिजन करें वेस्ट के साथ, तो दे आर लुकिंग फॉर सम मेंटोर, सम गाइडर, सम कोच, सम सक्सेस कोच। वो ले रहे होते हैं उनसे कुछ चीजें, उनका पढ़ने का, मुताला करने का एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। देखिए, जब भी आप रैपिड लर्निंग मोड पे नहीं जाएंगे, आप अपने समझने सीखने की सलाहियत को नहीं बढ़ाएंगे, तो आप कामयाब नहीं होंगे। ये एक्सेलरेट करता है, इस फ्लो को एक्सेलरेट करना है। जब आप रैपिड लर्निंग मोड को एक्सेलरेट करते हैं स्पीड के साथ, तो फिर आप आते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ एक्सीलेंस। यस, फिर कामयाबी आपके कदम चूमती है, फिर कामयाबी के आप करीब हो जाते हैं। ठीक है ना, हमेशा हर इंसान चाह रहा होता है कि हम एक्सीलेंस की तरफ जाएं। ठीक है ना, हम हमारे अंदर वो चीजें आए, तो उसके लिए अडॉप्ट कीजिए वो सारे मेथड और वेज। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हमें अपनी स्टडीज के अलावा, हमें स्टडी के अलावा जो और मटेरियल है
जो हमारी पर्सनालिटी को इंप्रूव करता है, जो हमारे अंदर स्किल्स को इनहेंस करता है, जो हमें बताता है कि आपने मुख्तलिफ जगहों पे क्या रिएक्ट करना है। और इसमें आपके टीचर्स के अलावा आपके मेंटोर, ठीक है ना, और आपके इवन के पेरेंट्स, आपके बड़े घर के अफराद, ये सारे उसका हिस्सा हैं। तो स्टूडेंट, डिस्कवर योरसेल्फ इससे पहले कि आप बहुत लेट हो जाएं। याद रखिए, जब आप बिलीव इन योरसेल्फ की बात करते हैं तो सेकंड स्टेज फॉर डिस्कवर योरसेल्फ की आती है। और डिस्कवर योरसेल्फ के बाद जो चीजें बिल्कुल मिलती जुलती हैं, बिल्ड योरसेल्फ, बिल्ड योरसेल्फ। हम इस कितने अफराद ऐसे हैं जो वाकई से मेहनत करते हैं? बिल्ड योरसेल्फ, बिल्ड योरसेल्फ बहुत जरूरी है। यानी कि ये बिल्ड योरसेल्फ क्या है? इनफैक्ट बिल्ड योरसेल्फ वो चीज है जो आपको इस चीज के को पहचानने पे मजबूर करती है कि आपने अपनी पर्सनैलिटीज की कमियों को कहां कहां कैसे कैसे खत्म करके रास्ता निकालना है। तो बिलीव इन योरसेल्फ, डिस्कवर योरसेल्फ, बिल्ड योरसेल्फ। एक तामीरी, एक कंस्ट्रक्टिव, प्रोडक्टिव अप्रोच को अख्तियार करना है आपने। यस, आप जिन कामयाब अफराद के एग्जाम्पल देते हैं ना, हम अक्सर मिसाल दे रहे होते हैं, ठीक है ना, चाहे उनका ताल्लुक कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो अच्छे बिजनेसमैन हो, चाहे वो रिलीजियस स्कॉलर हो, उनका ताल्लुक किसी भी डोमेन से हो, वो किसी भी कैपेसिटी में काम कर रहे हो, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि उनका एज ए एग्जाम्पल उनको कोट किया जाए। तो दे बेसिकली दे बिल्ड देमसेल्फ। उन्होंने मेहनत किया होता है अपने ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी को चार चांद लगाए होते हैं। तो यस, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट योरसेल्फ। आप अपने फ्लॉज को, अपने इश्यूज को आपने खुद एड्रेस करना है और अपने पर्सनैलिटी को बिल्ड करना है। नेक्स्ट स्टेज है री इन्वेंट योरसेल्फ। याद रखिए, हम बस औकात जिंदगी में एक ही मोमेंटम के साथ अपना मामला चला रहे होते हैं। हमें से बहुत कम अफराद हैं जो हर कोई 4 हफ्तों के बाद, 6 हफ्तों के बाद, 8 हफ्तों के बाद, 2, 3, 4 महीने के बाद कभी हमने अपनी रीस्केड्यूलिंग किया, रीविजिट किया अपने आप को, अपने स्केड्यूल को रीविजिट किया कि हमारे अंदर क्या और बेहतर होना चाहिए, क्या चीज छोड़ देनी चाहिए, क्या चीज अपना लेनी चाहिए। हमने नहीं किया। याद रखिए, यह बड़ा जरूरी है कि आप अपने आप की रिवीजन करते रहें आफ्टर फ्यू टाइम। यस, इट्स मच कंपल्सरी। इसको आप अपनाएं। ये अच्छी आदत है, इसको आप अपनाएं, आपकी शख्सियत के अंदर चार चांद लगेंगे। और दूसरी बात, हमें से कितने अफराद ऐसे हैं जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं? हम कामयाब तो होना चाहते हैं, हम बेहतर होना चाहते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक क्यों नहीं करना चाहते? हम चाहते हैं कि, देखिए, मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूं कि हम सब जंगल का शेर बनना चाहते हैं। एक होता है सर्कस का शेर, और जंगल का शेर क्या होता है? जंगल के शेर को शिकार खुद करना पड़ता है, जंगल के शेर को धूप और बारिश का भी सामना करना पड़ता है, जंगल के शेर को कभी शिकार मिलता है, कभी नहीं मिलता। सर्कस के शेर को ना धूप का मसला, ना बारिश का मसला, उसको 3 वक्त का खाना मिलता है और वो भी मटन मिलता है। लेकिन फर्क दोनों में क्या है कि जंगल का जो शेर है वो पाबंद है अपने आका की बात मानने में, और जो सर्कस का शेर है वो पाबंद है अपने आका की बात मानने में, और जो जंगल का शेर है वो आजाद है अपने डिसीजंस करने में। अगर हमसे ये सवाल किया जाए हम क्या बनना चाहेंगे, तो ऑफ कोर्स हमारी ख्वाहिश होगी जंगल का शेर बनना चाहेंगे। तो जंगल का शेर बनने के लिए आपको कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। जिंदगी में कामयाबी उन अफराद को मिलती है जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं, जो अपॉर्चुनिटी जोन में आती हैं। याद रखिए, जिंदगी के 3 साइकिल हैं, ये तीनों इंटीग्रेटेड हैं। आपका जो ग्रोथ का जोन होता है ना, वो आप कंफर्ट जोन को ब्रेक करते हैं तो फिर आता है, ठीक है ना। आप ग्रोथ जोन में जाना चाहते हैं तो ग्रोथ जोन जो है वो उसकी ओवरलैपिंग है अपनी कंफर्ट जोन के साथ। कंफर्ट जोन को आप जंप आउट करते हैं तो आप फिर ग्रोथ जोन में जाते हैं। याद रखिएगा, आप ग्रोथ जोन में नहीं जा सकते जब तक अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक ना करें। आपको शैकल को ब्रेक करना होता है और फिर अपॉर्चुनिटीज को आपको लेना होता है अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके कामयाबी की तरफ। तो री इन्वेंट योरसेल्फ। हमने अभी तक क्या बात की? बिलीव इन योरसेल्फ, डिस्कवर योरसेल्फ, हमने बिल्ड योरसेल्फ और री इन्वेंट योरसेल्फ। हमने 4 फेजेस की बात की अभी तक। हम थोड़ा आगे मूव करते हैं। ये बिल्ड की हम पहले बात कर चुके हैं, मैपिंग टूल्स और नेटवर्किंग विद द वैल्यू एडर। मैपिंग टूल्स यानी कि आपके पास जो स्किल्स है उसको मैप कीजिए कि ये चीजें मेरे पास पाई जाती हैं, इनको मैंने मजीद बेहतर करना है, और ये वीकनेसेस को मैंने इंप्रूव करना है। और नेटवर्किंग विद द वैल्यू एडर,
अगर तो जिंदगी में कुछ लोग जो कामयाब हैं और आपको कामयाबी दे सकते हैं, आपने नेटवर्क बढ़ाइए उनके साथ। हमारी दोस्तियां ये पहचान होती हैं कि हमारा ताल्लुक इन अफराद के साथ है, हमारी अप्रोच पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो नेटवर्किंग विद वैल्यू एडेड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो लोग आपकी पर्सनैलिटी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी का अच्छा होना, बेहतर होना कामयाबी की अलामत है। और मुझे इस मामले में बहुत कम एग्जाम्पल ऐसी मिलती हैं कि हमारी दोस्ती का मेयार, चाहे वो दीन की बुनियाद हो चाहे वो दुनिया हो, हम वैल्यू एडेड को साथ अपने लेके चले। नॉर्मली हमने कभी इसमें कोशिश नहीं की कि हम उन लोगों को अपने साथ रखें जो हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करें, जो ड्राइविंग फोर्स हो, थ्रिल हमें दें, जो हमारे अंदर पैशन पैदा करें। ठीक है ना? तो पैशन तो आपको वही देगा ना जो खुद पैशनेट है। तो आपकी नेटवर्किंग वैल्यू एडेड के साथ इंतहाई इंपॉर्टेंट है अपने आप को बिल्ड करने के लिए। जी, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। इस स्मार्ट इन्वेस्टमेंट क्या है अपनी जात पे करने के लिए? देखिए, इमोशनली हम बहुत जल्दी इमोशनल चार्ज हो जाते हैं, हम फौरन ही रिएक्ट कर देते हैं, टेम्परामेंट लूज कर जाते हैं, हम फौरन ही गुस्से में आ जाते हैं, टेम्पर लूज करते हैं। आपने स्टेबिलिटी लेके आनी है। याद रखिए, यूनिटी उस वक्त आती है जब चीजें स्टेबल होती हैं। आज यही मामला हम अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है मामलात के अंदर। हमारे पॉलिटिकल लेवल पे भी ऑपोजिशन और हुकूमत आमने सामने चल रही हैं, और वो क्योंकि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, और नीचे हम देख रहे हैं कि नीचे आते 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 एक आम इंसान के अंदर भी स्टेबिलिटी नहीं है, और जो यूनिटी के ना होने का बायस बन रही है। इमोशन बैलेंस करके चलना जिंदगी में कामयाबी की दलील है। आप, यस, मैं ये नहीं कह रहा कि बस औकात कोई ऐसी स्टेजेस आती हैं जब आप थोड़े से गुस्से में आते हैं, आपको रिएक्ट करना होता है, लेकिन हम तो हर वक्त रिएक्ट करते हैं। लिहाजा इस पर हमने गौर करना कि बैलेंस अप्रोच क्या होती है। स्पिरिचुअली हमारा ताल्लुक अपने रब के साथ कितना अच्छा है। देखिए, हम मेडिटेशन की बात पे करके आएंगे। स्पिरिचुअली आपकी सारी कामयाबी एक तरफ, लेकिन आपका ताल्लुक आपके रब के साथ कितना अच्छा है ये एक तरफ। तो स्पिरिचुअली भी आप अपने ऊपर मेहनत करें। आप खुद अपने आप की अपनी बसौकत आंखें बंद करके, इस फेज के अंदर आंखें बंद करके आप अपने रब से ताल्लुक मजबूत करने की कोशिश करें, और झांकिए अपने अंदर की क्या कमी है आपके अंदर जिसको अपने इंप्रूव करना है। इंटेलेक्चुअली हम कितना पढ़ते हैं, हमारा ताल्लुक पढ़ने से, पढ़ाने से, चीजों को समझने से, समझाने से किस कदर ज्यादा है ये काम में। ठीक है ना? हमारी इंटेलेक्चुअल अप्रोच क्या है, इस पे हमने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। और फिजिकली, मैंने पहले भी इस पे बात की है, यकीन जानिए, हम अपने आप को जो बहुत मसरूफ समझना शुरू हो गए बदकिस्मती के साथ, वो भी सो कॉल्ड है, इस सारे मामले के अंदर हम ये भूल ही गए कि हमारा जिस्म जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहा। आज यंगस्टर्स भी तरह तरह के मसाइल का शिकार है। ठीक है ना? क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूं, मैं देखता हूं किसी को भागने में इशू है, किसी के हाथ का इशू, किसी के पांव का इशू है। अभी छोटी छोटी उम्र के अंदर किसी को यूरिक एसिड है, कोई डायबिटिक का पेशेंट बन गया है, किसी को हार्ट का इशू है। हमने फिजिकली भी मेहनत अपने ऊपर नहीं की। देखिए, ना इंटेलेक्चुअली मेहनत की, इमोशनली मेहनत की, ना स्पिरिचुअली मेहनत की, और ना ही फिजिकली मेहनत की। ये चारों डोमेन है जहां आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, अगर आप ब्रांड बनना चाहते हैं और अगर आप कामयाबी समेटना चाहते हैं। गो ऑफ योर सेल्फ, टाइम वैल्यूएशन। यस, ये कामयाबी, देखिए, मैं ये नहीं कहता कि शॉर्ट टर्म सक्सेस नहीं होता है, बिल्कुल सक्सेस होता है, लेकिन प्लीज गो बियॉन्ड इट। लॉन्ग टर्म को सोचिए, प्लानिंग कीजिए। आप घोड़े की एग्जांपल देते हैं, घोड़ा क्या करता है? हम बात करते हैं ना, हम कंपैरिजन करते हैं वेस्ट के साथ, हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज की, तो घोड़ा क्या करता है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हमें अंदाजा होना चाहिए कि जो डिग्रीज आप हासिल कर, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है, आपने क्या करना है, फर्दर स्टडीज करना है, मार्केट में जाना है, तो आपका पोजीशनिंग क्या होगी, आपकी प्रोडक्टाइज क्या करेंगे, आपकी सिलेक्टेड इंडस्ट्री क्या होगी, आपका सेक्टर क्या होगा, आपकी जॉब पोजीशन क्या होगी, आप किस तरह की, आपकी मेंटल जो स्टेबिलिटी है और हार्मनी है कहां फॉल करती है, किस तरह की जॉब आप ले पाएंगे। ठीक है ना? ये सारी चीजें इंतहाई जरूरी हैं जिसके बारे में आपको अंदाजा होना चाहिए। तो जब भी आपने काम करना है लॉन्ग टर्म, ऑल्दो कि शॉर्ट टर्म गोल और शॉर्ट टर्म सक्सेस भी कामयाबी की दलील होते हैं, लेकिन आपका जो लॉन्ग टर्म है वो हमेशा आपको फायदा पहुंचाता है। लिहाजा टाइम वैल्यूएशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई करना और यूज करना है ताकि आप जिंदगी में कामयाब हो सके।
हमारी लास्ट स्टेज है बी योरसेल्फ, परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट टूल। वो चीजें जो आपकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करती हैं, हमें से हर बंद को पता है। आप अपना ग्राफ खुद तैयार करें, थिंग्स टू डू लिस्ट बनाइए, मैंने फिर बताया लिस्टिंग कीजिए, आपने स्ट्रेंथ एरिया को डिफाइन कीजिए, आपने वीकर एरिया को डिफाइन कीजिए, अपॉर्चुनिटीज कहां कहां आपको हो सकती हैं। तो परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट टूल हमारे अपने हाथ में है, हमने खुद अपनी स्किल्स पे मेहनत करनी है और हमें अंदाजा होना चाहिए। और पोटेंशियल वर्क मैनेजमेंट, यानी कि आप जब भी पोटेंशियली काम करते हैं, यानी कि देखें बहुत सारी ऐसे एरियाज, निगलेक्टेड एरियाज, जहां तक अभी हमने कोशिश ही नहीं की, वो ऐसे निगलेक्टेड एरियाज हैं, हमें अंदाजा ही नहीं है कि हमें उस पर मेहनत करनी चाहिए थी। तो आपने दोनों एरियाज पे काम करना है, और हम में से हर कोई जानता है कि उसने अपना वर्कलोड कैसे शेयर करना है, उसने अपने वर्कलोड की मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसका पोटेंशियल वर्क मैनेजमेंट क्या हो सकती है, ठीक है ना, गैर जरूरी चीजों को कैसे छोड़ देना है। तो परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट टूल और पोटेंशियल वर्क मैनेजमेंट, ये इंतहाई जरूरी है जब आप चीजों को कंक्लूड कर रहे होते हैं एज फार एज द सेल्फ ब्रांडिंग इज कंसर्न। और देखिए सेल्फ इंपोज डिसिप्लिन, ये जो पिछली स्लाइड हमने डिस्कस की अभी, बी योरसेल्फ, जहां हमने परफॉर्मेंस इनहेंसमेंट स्किल्स की बात की है और पोटेंशियल वर्क मैनेजमेंट की बात की है, तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या है, सेल्फ इंपोज डिसिप्लिन कायम करने पड़ेंगे। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन आप एक बार इस पर चल पड़ते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, प्रेशर बिल्डिंग मेथड है। प्रेशर बिल्डिंग मेथड क्या है, खुद अपने आप को डेडलाइन दीजिए, खुद अपने आप की चीजों को प्रायोरिटाइज कीजिए, आपका वैल्यूज और विजन क्लियर होने चाहिए, फोकस क्लियर होना चाहिए, टारगेट कहां करना आपने क्लियर होना चाहिए, आपकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स क्या है आपको अंदाजा होना चाहिए। हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स का हमें अंदाजा ही नहीं है, हमने कभी गौर नहीं किया हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, हमारे फॉल्ट्स क्या है, हमारी बैड हैबिट्स क्या है जिसको हमने छोड़ना है, और हमारी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स क्या है, ठीक है ना, हमें किन एरियाज के अंदर अपने आप को एक्सेल करना है। ये जब तक इस तरह के सेल्फ इंपोज डिसिप्लिन अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे, हम जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ ब्रांडिंग स्किल्स। मैं फिर आपको रिपीट करता हूं, इट स्टार्ट फ्रॉम योर आइडेंटिफिकेशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, योर पैशन एंड योर पर्पस। और हमने बात की कि इसमें आपकी 4-5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिलीव इन योर सेल्फ, discover yourself, build yourself, reinvest yourself और be yourself। ये वो सारे तरतीब है, अगर आप इस पे थोड़ी सी मेहनत करें तो आप अपने स्ट्रेंथ एरिया को बेहतर कर सकते हैं। इवन के जो अभी छुपा हुआ है हमको, हमें उससे भी सामने लेके आना है और उसमें भी मेहनत करनी है। उम्मीद है कि हम इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे ताकि हम जिंदगी में कामयाब हो। और जो कामयाब अफराद जो आप देखते हैं, ये ओवरनाइट नहीं है, इसके पीछे बड़ी स्ट्रगल है, बड़ी मेहनत है, बड़ी कोशिश है। अब मार्केट के हालात बहुत सख्त हैं, हम रोज मार्केट में हैं, रोज लोगों को टीच कर रहे होते हैं डिफरेंट डोमेन्स के अंदर। यकीन जानिए मार्केट में आपको बड़े अच्छे हालात नहीं मिलेंगे। आपको अगर वहां जीतना है, अगर अपने आप को मनवाना है, तो आप खुद अपनी पोजीशनिंग कीजिए, अभी से खुद ब्रांडिंग की कोशिश कीजिए, खुद मार्केट कीजिए अपने आप को। आपको अपने आप ने बारे में अच्छा अंदाजा लगाना है। वो जो स्किल्स अभी तक आप हासिल नहीं कर पाए, ये मार्केट में आपको डिस्टर्ब करेंगी। आप यकीन जानिए कि आप जब इंटरव्यूज के टेबल पे जाएंगे तो आपकी जब कीमत लगती है तो कीमत आपके स्किल्स के बेस पे लग रही होती है। आपकी डिग्री आपकी पहली एंट्री है जो सीवी के थ्रू आपको टेबल पे पहुंचा तो देगी। वहां जॉब इंटरव्यूज के अंदर अगर आप स्किल्स को इंप्रूव नहीं करेंगे तो आप मुश्किल का शिकार हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप इस पे कोशिश भी करेंगे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां फराहम करें। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये प्लीज ये अपने माइक्स ऑफ करें, ये जो स्टूडेंट्स जिनके माइक ऑन है, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज करें। तो जी किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करना हो तो वो कर सकता है, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, या अगर वो खुद से भी अनम्यूट हो सकते हैं तो वो कर सकते हैं। जी ये एक है उमर अली हैं जी हाँ, जो कि, जी उमर प्लीज क्वेश्चन कीजिए। मेरा सवाल ये था जी, जो टाइम जाया करने की ये एक बीमारी होती है, आदत होती है, या एक साइकोलॉजिकल इशू होता है कि इसको मैनेज करने में, इसको कम करने में बहुत ही जो है ना, एक सामने देखे बंदा तो बहुत एक पहाड़ जैसा नजर आता है। तो हाउ वी कैन डील विद दिस प्रॉब्लम? जी सर, ये प्रोकास्टिनेशन के ऊपर ये कह रहे हैं सर, थोड़ा बता दीजिए, गाइड कर दें।
जी उमर, thank you very much. I'm really thankful to you that you are the very first one who has some kind of courage and mashallah will to ask question. And I'm thank you very much again. और what I believe that as-सवाल निस्फुल इल्म, सवाल आधा इल्म होता है, और वो लोग जो सवालात करने के आदी होते हैं यकीन जाने वो कामयाबी के बड़े करीब होते हैं। आपको जो सवाल देखिए जी, टाइम मैनेजमेंट भी एक स्किल है जी। टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जो आपके अपने हाथ पे है। देखें, नॉर्मली वी आर बेसिकली लिविंग इन ए वेरी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। हमारे यहाँ तरजीहात बड़ी डिफरेंट हैं। हमें समझ ही ना आ सके कि हमारी तरजीहात हैं क्या। हमने चीजों को प्रायोरिटाइज ही नहीं किया, किस चीज पे कितना टाइम देना है, किस चीज पे कितना टाइम नहीं देना। टाइम एक अलग इश्यू है और टाइम को मैनेज करना एक अलग इश्यू है। हमारे पास टाइम तो बहुत ज्यादा है, हम टाइम को मैनेज करना चाह नहीं रहे होते, इंटेंशन नहीं होती। इसका बड़ा आसान तरीका है, थिंग्स टू डू लिस्ट बनाइए, अपनी चेक लिस्ट को डिफाइन कीजिए। डिफरेंट आप पेस्टर्स लगा सकते हैं, अपनी डायरीज बना सकते हैं, अपने कैलेंडर्स बना सकते हैं, अपने रिमाइंडर्स लगा सकते हैं, आप क्लॉक पे रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, मोबाइल पे सेट कर सकते हैं। और यकीन जान, मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। हम कोई थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहे उमर भाई, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। देखिए, एक मरतबा अगर आप ये प्रायोरिटाइज कर लें, मैं आपको मिसाल देता हूं कि मुझे याद है कि अगर मैं रात 2 बजे भी सोऊं तो मुझे अंदाजा है कि मैंने फजर की नमाज पढ़नी है। तो मैंने डिसाइड किया हुआ है, मैंने अलार्म लगाया हुआ है, तो मेरी आंख फजर की नमाज में खुलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मस्जिद में जाता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि मैंने उसके बाद क्या करना है, मैंने उसको आदत का हिस्सा बना लिया है। मैंने सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन कायम किया अपने ऊपर। मैंने कुरान की तिलावत करनी है तो मैंने करनी है। मुझे पता है कि मैंने एक्सरसाइज के लिए जाना है तो मैंने जाना है योगा करने के लिए। मुझे पता है कि मेरे आज दिन के क्या टास्क हैं। मैं सबसे पहले जब योगा से घर आता हूं तो मैं जब नाश्ता कर रहा होता हूं तो उसके बाद मैं सोच रहा होता हूं कि मेरे टास्क आज के क्या क्या है, मैं उनको प्रायोरिटाइज करता हूं। एक मरतबा आप कोशिश करेंगे, 2 मरतबा करेंगे, अल्लाह से मदद मांगेंगे, यकीन जानिए ये बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ। हम चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे होते। एक है टाइम मैनेजमेंट उमर, एक है सेल्फ मैनेजमेंट। मैं समझता हूं कि आपने जो सवाल पूछा वो इतना क्रुशियल नहीं है, वो तो फिर भी मैनेज हो जाता है। ये सेल्फ मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है। असातिज़ा कहते हैं अगर आप बहुत भी अच्छे स्टूडेंट है ना, बड़े कामयाब हैं, बहुत आपका हाई सीजीपीए भी आता है, और फर्ज कीजिए अगर ऑन द डे ऑफ द एग्जाम किसी पेपर में, एबीसी पेपर में, अगर आप सेल्फ मैनेज नहीं कर पाते तो आप कोलैप्स हो जाएंगे। सेल्फ मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑन द डे ऑफ द एग्जीक्यूशन आती है, जब चीजों को अपने एग्जीक्यूट करना होता है, हम में से बहुत लोग कोलैप्स कर जाते हैं। और नुकसान क्या होता है कि वो उनका रिजल्ट क्या होता है, वो नेगेटिव में चला जाता है, वो फेलियर की तरफ चले जाते हैं। तो बहरहाल इसकी कोशिश करें, अल्लाह से मदद भी मांगे, चीजें की तरजीहात को डिफाइन कीजिए, और आप इस पे बकायदा नोट्स बनाएं और एक चेकलिस्ट को बनाएं। गोरे की मिसाल देते हैं तो आप कभी देखेंगे काम करने का अंदाज, उन्होंने बकायदा टाइम टेबल ड्राफ्ट किया हुआ है, उन्होंने एक चेकलिस्ट ड्राफ्ट की हुई, उन्हें अंदाजा है कि किस चीज को कहां अहमियत देनी है। जी थैंक यू। Yes, sir. There is another boy whose name is Avais. He also want to ask a question. Yes, Avais, please. सर मेरा आपसे ये सवाल है कि सर हम पास दफा ऐसे करते हैं कि सर कोशिश करते हैं कि हमने ये काम करना, आज ये काम करना, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुबह वही काम हम करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। सर ये क्या रीजन है? देखिए अवैस भाई, इसकी बड़ी आसान सी रीजन है। मैंने आपसे अर्ज किया जब मैं अभी प्रेजेंटेशन दे रहा था, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जब आप किस चीज का इरादा कर लेते हैं ना, जब आपकी इंटेंशन होती है तो यकीन जानिए अल्लाह मदद भी देते हैं आपको। इसका बड़ा आसान तरीका है कि मैं देखें, मेरा ईमान है इसके ऊपर, मेरा इसमें ईमान है कि आप अल्लाह से मदद मांगें, आप अल्लाह की मदद को शामिल हाल कीजिए और अल्लाह ताला से राब्ते में रहें और उससे मदद लीजिए इस चीज के बारे में। ये बहुत आसान चीज नहीं है। हम जब सोचते हैं हम उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। फर्म हो जाइए, कमिटेड हो जाइए, डेडिकेटेड हो जाइए। आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें मैंने करनी है। वही बात है, इसको मैं लिंक करूंगा पिछले सवाल के साथ। वंस यू आर डिटरमिन्ड कि मैंने ये करना है तो ऑफ कोर्स आप कर लेते हैं। इरादे बनते भी हैं, इरादे टूटते भी हैं, और यही वो फर्क है कामयाब अफराद का और नाकाम अफराद का, कि हम सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आपको याद नहीं है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे असातिज़ा पढ़ाया करते थे, हमारी बुक्स के अंदर ये बात लिखी हुई है कि आज काम कल पे मत छोड़ो। मैं छोटी सी मिसाल दूं आपको, ये मिसाल सुन के अगर बिलाल साहब मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं तो सर बिलाल बहुत मुस्कुराएंगे।
कि हमारा जो आज का सेशन आपके साथ हो रहा है, आप अप्रिशिएट कीजिए अपनी मैनेजमेंट को और स्पेसिफिकली सर बिलाल को कि ये कोई 2-2.5 हफ्ते पहले प्लान हुआ, बकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ, ईमेल ड्राफ्ट की गई, ईमेल के साथ जो भी लोग थे जिनको कंसर्न अथॉरिटीज थी उन तक ये बात पहुंचाएगी सीसी के अंदर। मुझे ईमेल आई, मुझे बकायदा बिलाल साहब की कॉल आई कि आज से 2 या 3 हफ्ते के बाद फलां डेट में फलां टाइम है। अच्छा, डिस्कस हो गया, मैंने मेल का जवाब दिया, पोस्टर डिफाइन हुआ, प्रोमो बना, वो मेरे पास आया, मैंने एक्नॉलेज किया। और कल मुझे सर बिलाल की कॉल आई कि सर आपको पता है कि कल आपकी प्रेजेंटेशन है। मेरा दिल इतना खुश हुआ, ये है प्रोफेशनल अप्रोच, ये है प्रोफेशनल अप्रोच। उन्होंने इस चीज को इजी नहीं लिया, उन्होंने मुझे रिमाइंडर कॉल दी कि सर कल आपका सेशन है, आप उसके लिए तैयार हैं, आपको अंदाजा है। और मेरा आगे से जवाब था, सर मैं तैयार हूं, इंशाल्लाह भरपूर सेशन होगा। तो देखिए ये कमिटमेंट प्रैक्टिकली मैं एग्जांपल दे दी आपको जो मेरी और सर बिलाल के दरमियान हुई। तो मैं समझता हूं कि थोड़ी सी अगर आप कमिटमेंट का इजहार करें तो अल्लाह ताला आपकी मदद भी करते हैं और आप कामयाब भी होते हैं। और जो लोग ये नहीं कर पाते, यकीन जानिए वो नुकसान उठाते हैं। हम जहां बजा जब मूव कर रहे होते हैं ना पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, तो हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हमें अंदाजा होता है कामयाब अफराद वही हैं जो स्टिक हो जाते हैं अपने गोल के साथ। जी प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैंने पूछना था कि हम सेल्फ कंट्रोल कैसे करें। लाइक अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली कहीं और मतलब किसी और सोच में चला जाता है, काम को कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये कैसे हम कंसंट्रेट करें किसी भी चीज पर? जी सर, जी ये महम, महम इकबाल है, उनका क्वेश्चन है, प्लीज। जी महम, थैंक यू महम। कंसंट्रेशन जो है ना, कंसंट्रेशन आपके माइंड से रिफ्लेक्ट होती है, आपके फोकस से रिफ्लेक्ट होती है। कंसंट्रेशन जो है वो प्रैक्टिस से इंप्रूव होती है। कंसंट्रेशन के लिए ड्रिल्स करनी पड़ती हैं, अपने आप को खुद साइकोलॉजिकली मोटिवेट करना होता है और खुद इन चीजों को इनिशिएट करना होता है। देखिए तवज्जो, जब भी आपका फोकस जरा सा दाएं से बाएं होगा आपका फोकस खराब हो जाएगा। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, अगर मैं बड़ी तवज्जो के साथ अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं और अभी मैं जरा सा अपनी कंसंट्रेशन को लूज करूं तो मुझे नुकसान हो जाएगा, मैं आप बात कर ही नहीं पाऊंगा। मैं इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूं। महम, आपने तवज्जो की बात पूछी है कि हम इसको कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते हैं। वो याद पड़ता है कि जब सुबह रोजाना एक्सरसाइज के लिए मैं जा रहा होता हूं तो हमारे जो योगा के टीचर हैं ना, जो मास्टर ट्रेनर हैं, उनका एक बड़ी अच्छा सा उनका एक बयान, एक स्टेटमेंट है जो मैं आपके सामने रखूंगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वो हमें कहते हैं कि भाई आप क्लब में आए हैं, आप में से मुख्तलिफ लोग जॉब प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, आप जो कोई भी हैं, प्लीज आप अपनी सारी सोच, सारा डर, सारा फियर, सारा गौर फिक्र आप इस क्लब से बाहर फेंक के आए। यहां आप सिर्फ फोकस करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। जब आप फोकस क्लियर कर लेते हैं ना किसी भी डोमेन के अंदर तो तवज्जो खुद ब खुद आ जाती है। याद रखिए, एक बड़ी आपको अच्छी सी मिसाल दूं। नॉर्मली जब 2-4 अफराद ना किसी सेशंस में मेरे आगे बैठे होते हैं ना तो मुझे ना बात करने की तरह मजा नहीं आ रहा होता। जैसे ही तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है ना तो मुझे ऐसे महसूस होता है जिस तरह मैं बड़ा कन्फाइंड होता जा रहा हूं और मेरा फोकस बड़ा अच्छा होता जा रहा है। तो ये माइंड गेम है आपकी, ये माइंड गेम है। जितना आप माइंड से अलाइव रहते हैं ना आपकी तवज्जो बरकरार रहती है। बस अपने आप को हाजिर रखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसकी ड्रिल कीजिए। 2-4 मरतबा कोशिश करने के बाद आप इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से चीजों को कंसंट्रेट कर पाएंगी। तो इसके लिए इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जब हमने बात की थी ना बिल्ड योर सेल्फ के अंदर, तो अभी भी इस स्लाइड मेरे सामने आ रही है कि नेटवर्किंग विद अ वेरी वाइडर। जब हमारी दोस्तियां, जब हमारी फ्रेंडशिप वैल्यूएटर के साथ होती है तो हम चीजों को डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। देखिए अगर आपके अंदर ये कमी है, मिसाल के तौर पे आप तवज्जो बरकरार नहीं रख पाती, तो आप अपनी नेटवर्किंग उन लोगों के साथ कीजिए जो इस फील्ड में बहुत अच्छे हैं। 2-4-5 अफराद आपको फैमिली से मिल जाएंगे, 2-4 अफराद आपको अपने घर से मिल जाएंगे, 2-4 अफराद आपको अपने नेबर्स और कजन से मिल जाएंगे। आप ऐसे लोगों से राब्ते में रहें जो चीजों को फोकस करके, फोकस अप्रोच के साथ जिंदगी मूव कर रहे होते हैं। तो यकीन जानिए कुछ चीजें जो हमारे पास नहीं भी होती हम दाएं बाएं से अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारा एनवायरनमेंट हमें सिखा देता है। जी थैंक यू। थैंक यू सर। जी बिलाल साहब।
जी सर, dear students, if anybody has another question, उमर अली एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है और फिर इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। जी सर, उमर अली जी, उमर अली बताइए। जी सर, थैंक यू सर। मैंने पूछना था कि अगर हम कोई पर्सनैलिटी देखते हैं, कोई रोल मॉडल देखते हैं, किसी किसी का कोई एटीट्यूड हमें अच्छा लगता है, तो सिर्फ उसको सोचने से हमारी पर्सनैलिटी में वो चेंजेस आ जाती हैं, या हम ज़्यादा सोचते हैं उसके बारे में, तो उसका क्या प्रोसेस होता है कि अगर आपने किसी को फॉलो करना है तो क्या सिर्फ सोचने से आप ऐसा बन सकते हैं? उमर, आपके इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। पहली तो बात यह है कि ऑफ कोर्स जब आप विजुलाइज करते हैं ना किसी पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है ना, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि उसका कोई आपको फायदा नहीं होता। मैं एक मिसाल दूं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम जब विजुलाइज करते हैं, जनाब सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन की स्किल्स को विजुलाइज कर रहे होते हैं, तो आपके अंदर एक इंस्पिरेशन नहीं आ जाती, आपके अंदर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आती है, मोटिवेशन आती है, लगन आती है, कमिटमेंट आती है, डेडिकेशन आती है ना। एक्सक्यूज मी सर, ये आयशा नाज, प्लीज अपना माइक बंद करें, आपकी बैकग्राउंड से काफी आवाज आ रही है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर दें। अच्छा, एक तो ये है, एक पहलू तो ये है, एक आपके सवाल का एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि यस ऑफ कोर्स जब आप प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं ना चीजों को, एक है आपने किसको देखा, एक है आपने प्रैक्टिकली उस चीजों को एग्जीक्यूट किया, अप्लाई किया अपनी जात के ऊपर, तो उसका बहुत फायदा है। देखिए, अमल की ताकीद आपके मजहब में क्यों की गई? मजहब इस्लाम के अंदर अमल कहा गया, बार बार अमल की बात की गई, ठीक है ना। आप जब चीजों को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं और प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो आपको उस चीज का फायदा होता है। देखिए, यहां चीज और भी बड़ी क्लियर करने की जरूरत है। देखिए, जब हम किसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करते हैं ना, जो विजुलाइज करते हैं, तो मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूं कि सारी की सारी जो कामयाबियां है ना, किसी फर्द वाहिद के अंदर हमें नहीं मिलती, सवाए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात के। मिसाल के तौर पे आप पॉलिटिकली किसी को देखते हैं तो आप कहते हैं यार तैयब उर्दगान जो हैं वो बहुत अच्छे लीडर हैं, नेल्सन मंडेला बहुत अच्छे लीडर हैं, महातीर मोहम्मद बहुत अच्छे लीडर हैं। आप कायदे आजम की मिसाल देते हैं, आप बिजनेस टाइकून की बात करते हैं तो आपको बिल गेट नजर आ जाता है, आप कहते हैं क्या बात है। ये लीडरशिप के सब सेगमेंट हैं, छोटे 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 छोटे, ये पूरी लीडरशिप का अहाता नहीं करते। देखिए, जब आप मेंटोर की या लीडर की बात करते हैं तो सवाए अल्लाह के नबी की जात के हमें कोई मुकम्मल नजर नहीं आता। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को एग्जांपल ले लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहासियत बाप कैसे थे, बहासियत उस्ताद कैसे थे, बहासियत सफर सलार कैसे थे, आप इन चीजों को प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट करवाया, जनाब साहबा की तरबियत कैसे की, मामलात कैसे लेकर चले। यकीन जानिए ये हमारे लिए मशअल राह है। आप इसको विजुलाइज करें और फिर आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा इसमें। थैंक यू वेरी मच। Dear sir, thank you very much for conducting such a great talk on the topic of self-branding. So I hope the students have learned a lot and they will apply all these tools and techniques on their self to become a brand and to introduce their self in the corporate sector as a powerful brand. So sir, आपके आने का और आपका टाइम देने का और आपका लेक्चर डिलीवर करने का हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह के सेशंस के लिए हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में, और किसी और टॉपिक के ऊपर आपसे बच्चों के साथ एक सेशन करवाएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, डियर सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच बिलाल सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।